Hello everyone, dear students. Today we are going to start our new text, that is the Moments, the Rapid Reader, which was along with that Beehive text. Now the chapter is The Lost Child, and it was written by the famous Indian poet named Mulk Raj Anand. So before starting the chapter, let us read something about the poet. Mulk Raj Anand, about the poet. He was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poor caste in traditional Indian society. Poorer caste in traditional Indian societies means he focused more on the poor section of our Indian society. He is a prominent Indian author of novels, short stories, and critical essays in English. Means he was famous for writing short stories, novels, and critical essays in English. Critical essays in English means something critical points about the society. He is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India. Now here you could see it is Mulk Raj Anand, the pic of him. Now let us read about his when he was born. He was born on 12 December 1905 at Peshawar, which is in Pakistan. He died on 20th December 2004 at Jahangir Hospital, which is in Pune. He took education from University of Cambridge, University College of London, and Khalsa College. Now let us move towards the chapter The Lost Child. Now a child who goes to a fair with his parents. Okay. Now the lost child is a story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. राउंड स्विंग मतलब जब वो झूलों को और मेले में जाता है और इतना एंगेज हो जाता है, he gets engrossed in these things. So this story highlights the bond of love and affection that the child share with his parent. So let's see what is there in this chapter. Now before starting the chapter, I would like you to recall something. I think you people would have also experienced such things. आप लोग कभी ना कभी तो फेयर में यानी मेले में गए होंगे, ठीक है. एंड यू हैव सीन दैट छोटे बच्चे जो होते हैं, यू हैव नाउ, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुमसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जब अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में किसी भी मेले में या कहीं पे भी जाते हैं, व्हाट दे डू, दे आस्क फॉर वेरी मैनी थिंग्स. हमको ये दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. द काइंड ऑफ बिहेवियर, द काइंड ऑफ एक्शन they do at that time. So before starting the chapter, I want you to tell you that imagine a child in your mind. एक बच्चे को आप imagine करो, okay, and his behavior, which is a very common behavior of every child when he goes with his parents to a fair or any such other place. Okay, so आप mind में एक बच्चे को imagine करना and how he behaves. So it is beautifully explained in this chapter, which comes directly, exactly as a real in front of our eyes, as a picture in front of our eyes. Okay, so let's start the chapter. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited. He wants the sweets, toys which are being displayed there, but his parents don't buy them for him. Then why then he refuse when someone else offers them to him? यानी जब वो अपने पेरेंट्स से मांगता है तब उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिलाते हैं, लेकिन जब यही चीज़ें कोई और उसको दिलाता है तो वो उन चीज़ों को मना क्यों करता है लेने से. सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. सो हियर द नेचर इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड, वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड. लेट अस रीड. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. Okay, from the wintry shades of narrow lanes, and Alice emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Now, here the poet is saying that it was the festival of spring. ठीक है, इस सीज़न में मेले लगते हैं गांव में. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. विंटरी शेड्स यानी इट वॉज हल्की सी ठंड थी, ठीक है. लेन्स एंड एलिज मीन्स रोड्स.
ठीक है. Emerged a gaily clad humanity. Gaily means very शाइनिंग क्लोथ्स. जब पहले के लोग तो बच्चे हो बड़े हो मेले में जाना है यानी फुल तैयार होके तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनते थे, isn't? Gaily clad humanity means lots of people who are getting ready to go to a fair. Some walked, कुछ पैदल चल रहे हैं. Some roads on horses, some are on horses, okay, and some are in bamboo and bullock carts, and some कोई बैलगाड़ी में बैम्बू बांस की बनी हुई बैलगाड़ी में जा रहे हैं. One boy which ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के पैरों के बीच में से होकर गुजरता है, भाग जाता है. And he was completely full of excitement, okay, life and laughter. Now here you could see the scene of the fair, okay. Now this is called as a roundabout. झूला जो होता है, ठीक है, that is called as a roundabout. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. It means as he lagged behind यानी थोड़ा सा पीछे रह गया तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं कि हमारे साथ चलो. And he was just cheering the toys which were being there in the shops. जो दुकानों पे खिलौने लगे हुए थे लाइंड अवे यानी सजा रखे थे, तो उनको देखते देखते वो चल रहा था तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं. तो वो भागता हुआ ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. It means you could imagine a boy who is walking with his parents, okay, but he is constantly watching those toys which are being displayed on the shop there, okay. वो पीछे उन्हीं जो दुकानें छूटती जा रही है उन पे जो टॉयज़ लगे उनको देखता जा रहा है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. It means as he came to where they had stopped to wait for him, यानी उसके पेरेंट्स आगे खड़े थे और जब वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है, he could not suppress the desire of his heart. He could not suppress the desire of his heart यानी उसकी बहुत इच्छा थी उन चीज़ों को खरीदने की, ठीक है. तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा था. बट इवन दो ही न्यू, उसको पता है कि उसके पेरेंट्स की आंखों में, उसके फादर के आंखों में हमेशा रिफ्यूज़ल मतलब आंखों से ही मना कर देते थे. एंड ही न्यू डैट हिज फादर विल नॉट बाय दिस थिंग्स फॉर हिम. ही सेज आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट. तो वो कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स मतलब एक्चुअली टायरेंट का मतलब होता है अ क्रूअल किंग, ठीक है, अ क्रूअल किंग. बट हियर फेमिलियर टायरेंट्स वे मीन्स हमेशा उसके फादर आँखों से ही डरा देते, आँखों में ही इतना गुस्सा रहता था उनके. तो जब वो खिलौना मांगता है तो उसके फादर उसको आँखों से घूरते हैं. His mother, now here his father is shown as a very strict person, okay, and just opposite to it is his mother. Melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." It means एक तरफ तो उसके फादर जो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के, सिम जस्ट अपोजिट टू इट वॉज हिज मदर, उसकी मदर बिल्कुल सॉफ्ट नेचर की, और उसको अपनी उंगली देती है कि वो उसकी मदर की उंगली पकड़ कर चले. लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, यानी देखो आगे देख कर चलो, तुम्हारे आगे क्या है, व्हाट इज़ बिफोर यू. नाउ व्हेन दे वर वॉकिंग थ्रू द लेन देयर दे पास्ड थ्रू अ फील्ड यानी खेत. तो वो जब अपने गांव से निकलते हैं तो वो जो रास्ता है वो एक खेत से होकर गुजरता है, ठीक है. तो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. नाउ दे एंटर्ड अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. सरसों के खेत में वो एंटर होते हैं कि वहीं से होकर वो रास्ता निकलता है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड
as it swept across miles and miles of even land. Pale like melting gold, it means जब वो उस खेत में एंटर होते हैं वो खेत ऐसा लग रहा था पूरा पीला, पीले सरसों से पूरे फूल खिले हुए हैं और दूर दूर तक वो खेत फैले हुए हैं। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सोना बिखरा हुआ हो, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुली वो लग रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. It means उस सरसों के खेत में बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज थे, ड्रैगन फ्लाइज इजंट, तो मतलब मक्खियाँ होती है एक तरह की और पर्पल विंग्स होते हैं उनके, तो वो अपने गॉडी मीन्स वेरी शाइनी ग्लिटरिंग पर्पल विंग्स, बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे एंड दे वर इंटरसेप्टिंग मीन्स डिस्टर्बिंग, किसको डिस्टर्ब कर रहे थे, लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, यानी कि एक लोन यानी अकेली एक मधुमक्खी थी, ठीक है, और एक बटरफ्लाई, उनको वो डिस्टर्ब कर रहे थे। एंड दिस butterfly and that black bee was trying to collect the honey in search of sweetness from the flowers. Okay, and these dragonflies were disturbing whom? The black bee and butterfly. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. Now that child was constantly following them, the dragonflies, okay, and he was following them so that he could catch one of them. वो उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा कर रहा था ये सोचकर कि कोई एक ड्रैगन फ्लाई अगर बैठ जाए तो वो उसको पंखों से पकड़ ले। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव द हैबिट ऑफ होल्डिंग द विंग्स ऑफ दैट टेंडर बटरफ्लाइज, कोई मधुमक्खी को सॉरी इनको बटरफ्लाई को भी पकड़ लेते हैं, है ना। तो सेम थिंग दिस बॉय वॉज ट्राइंग टू डू, but it would go fluttering up into the air where he had almost caught it in his hands. Okay, it means वो उसके पकड़ में आने ही वाला था, but that would go flapping up into the air, लेकिन वो हवा में फिर से पंख फड़फड़ा के उड़ जाता। Then his mother gave a cautionary call. Caution, सावधान करना, ठीक है। अक्सर बच्चे पीछे छूट जाते हैं, कुछ मस्ती करने लग जाते हैं, रोड पे इधर उधर हो जाते हैं, तो व्हाट मदर सेज कि साथ में चलो, घूम जाओगे, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एज कॉशनरी कॉल, सावधान करना। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, यानी वहाँ पे एक फुटपाथ बना हुआ था और वो उस पर नहीं चलकर इधर उधर कभी इसके पीछे कभी इसके पीछे दौड़ रहा था। तो हर मदर सेज वॉक ऑन अ फुटपाथ पर चलो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली and walked abreast of them for a while, however soon left behind. It means वो उनका पीछा, he ran towards his parents, अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ता है और उनके पीछे के साथ साथ चलता है, ठीक है, लेकिन फिर से वो पीछे रह जाता है। Why? He was attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. It means ही वॉज बींग अट्रैक्टेड, वो किससे अट्रैक्ट हो रहा था, छोटे से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो फुटपाथ के किनारों पर उन खेतों में से निकल रहे थे क्योंकि सनलाइट आ रही थी, है ना। एंड दिस इंसेक्ट्स ऑल्सो वांट सम सनलाइट बिकॉज इट वॉज लिटिल बिट ऑफ कोल्ड एट दैट टाइम, एंड दे वर टीमिंग आउट मीन्स बाहर जाके निकलना। ओके, सो दे वर टीमिंग आउट to enjoy the sunshine, even they want to enjoy the sunshine. So when he was looking at those insects, again his parents called him, come child, come. His parents called him from the shade of a grove means बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है। His parents called him from a grove where they had seated themselves on the edge of a well. Edge means किनारा होता है, ठीक है, किसी की सहारा लेकर बैठना है किनारे पर। और
ग्रोव मीन्स एक्चुअली बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, मैंगो ग्रोव वगैरह तुमने सुना होगा, ग्रोव. सो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, उन पेड़ों के वहाँ जाकर एक कुएं के किनारे पे पास में जाकर वो बैठ जाते हैं. ही रैन टूवर्ड्स दैम, अब वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है. नाउ व्हेन ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव. इट मीन्स जैसे ही वो उन पेड़ों के बीच में से निकलता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके थ्रू होकर वो निकलता है अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए. तो व्हाट हैपन्स, शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स यानी उन पेड़ों से फूल गिर रहे होते हैं, ठीक है. एंड व्हाट, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर दैट रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स. पीटल्स यानी पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ फ्लावर की. तो वो उन बरसते हुए पत्तियों को पकड़ने के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की बजाय उनको अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है. यानी पेड़ों से वो पत्ते गिर रहे हैं और वो नीचे गिरने से पहले ही उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. बट लो मीन्स बट सी, ओके, लो मीन्स सी. ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, अचानक से उसको डव्स के कूइंग यानी आवाज़, उनकी जो आवाज़ निकालते हैं डव्स, उसको बोलते हैं द साउंड मेड बाय द कूज. और जैसे ही वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है डव्स, ही रैन टूवर्ड्स इट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ के भाग जाता है. शाउटिंग द डव, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. इट मीन्स वो ऐसा भागता है कि उसके हाथ में जो पंखुड़ियाँ गिरी हुई होती है, पीटल्स या फ्लावर्स, उस पेड़ से वो नीचे गिर जाते हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. It means they called to the child, उस अपने बच्चे को अपने पास बुलाते हैं. who had gone running in wild capers, who had now gone running in wild capers. capers means उछलते कूदते हुए चलना, सीधे सीधे नहीं. और एक बनियान ट्री था वहाँ, ठीक है, और उस बैनियन ट्री के गोल गोल घूमने लग जाता है वो, ठीक है. तो वो उस अपने बच्चे को पकड़ते हैं वहाँ से. एंड गैदरिंग हिम अप मीन्स उसको पकड़कर, दे टुक द नैरो, उन्होंने रास्ता पकड़ा, ठीक है. दे टुक द नैरो मीन्स वेरी स्मॉल वाइंडिंग पाथ विच फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. यानी आप देख सकते हो यहाँ खेत होंगे, ठीक है, यहाँ खेत है और यहाँ से होकर ये रास्ता होकर निकलते हैं वो बाहर. और वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, जहाँ पर बहुत सारे मेला लगा हुआ है, लोग हैं, ठीक है. और यहाँ मस्टर्ड फील्ड से होते हुए उस गांव में वो पहुँचते हैं. विच लेड मीन्स जहाँ तक वो जाता है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. It means I think it was the first time the child had been to the fair at that time with his parents. Now as they entered the village, okay, as they entered the village, what the child saw there, he could see many other footpaths. उसने देखा बहुत सारे रास्ते हैं वहाँ पर, ठीक है. फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की भीड़. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर यानी ये सारे लोग उस मेले की तरफ जा रहे थे, मुड़ रहे थे. He felt very repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Confusion of the world he was entering यानी जब उसने वहाँ पर ये सब कुछ पूरा जो environment देखा, बहुत कंफ्यूज भी हुआ कि सब क्या है. खिलौने हैं, उसकी आवाज़ है, और बहुत सारे राउंड अबाउट्स है, स्विंग्स है, झूले है, बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, एंड बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, मैनी काइंड ऑफ थिंग्स ही सॉ देयर. एंड ही वॉज क्वाइट फैसिनेटेड, बहुत एक्साइटेड हो गया वो चीज़ें देख कर. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस. नाउ एज दे एंटर द फेयर, वहीं पर एक शॉप थी मिठाई वाले की, और वो ये सारी
ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसकी दुकान पे ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो उसने देखा कि उस दुकान पर बहुत भीड़ पड़ रही है। एंड एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स हियर, आर्किटेक्चर मीन्स हलवाई, जिसने ये मिठाई बनाई। ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग। एंड डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। यू हैव सीन दैट मिठाइयों को चांदी या सोने की बरक से सजाया जाता है, इजंट दैट इज़ कॉल्ड एज लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब तो गोल्ड यूज़ होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट सिल्वर चांदी की बरक ही लगाई जाती है। ओके, द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड, द चाइल्ड स्टाइड ओपन आई, यानी एक टक वो देखता रहता है। एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। इट मीन्स वो चीज़ें देख कर उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसकी सबसे फेवरेट थी बर्फ़ी। तो वो मन ही मन बोलता है, ज़ोर से नहीं बोलता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ठीक है, बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. It means उसको पता था कि भले ही वो कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, ठीक है, his parents would say he was greedy, यानी वो सेल्फिश है, उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे। तो बिना किसी आंसर को एक्सपेक्ट किए कि उसके फादर येस बोलेंगे या नो बोलेंगे, वो चुपचाप वहाँ से आगे चलता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, द चाइल्ड सीम इरेजिस्टिबली ड्रॉन, द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब एक्चुअली होता है किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक है, और इरेजिस्टिबली यानी फोर्सफुली। और जब उसने वो फूलों की माला देखी वहाँ पे, ठीक है, तो वो इतना अट्रैक्ट हो रहा था उसकी तरफ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट विद द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। तो वो उसकी तरफ जाता है जहाँ एक बड़े से बास्केट में, टोकरी में बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं, फूलों का ढेर है, हीप्ड। और वो धीरे से बोलता है, मतलब बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड यानी माला, फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो अब उसको पता था कि फिर से उसके पेरेंट्स उसको उस चीज़ के लिए मना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो यही एक्सक्यूज़ देंगे कि ये बहुत चीप है, यानी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो बिना किसी आंसर को एक्सपेक्ट किए आगे बढ़ता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. Now further they went, उन्होंने देखा एक पोल यानी बड़ा सा डंडा, और उसके चारों तरफ बलून्स लगे हुए हैं। आई थिंक एवरीबडी वुड हैव सीन दिस थिंग। आज भी इस तरह से बलून्स बेचे जाते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. So when the child saw that all these colorful balloons, ठीक है, रेनबो ग्लोरी ऑफ सिल्कन कलर्स, ओवरवेलमिंग डिज़ायर, इट मीन्स उसकी इतनी इच्छा हुई कि उसको वो बलून्स चाहिए ही। बट उसको पता है अगेन दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। और वो क्या एक्सक्यूज़ देंगे कि अब तुम बड़े हो गए, इतने छोटे भी नहीं हो कि इनसे खेलो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। तो फिर वो आगे अपने पेरेंट्स के साथ फिर से बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है, वॉट ही सॉ अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। ठीक है, तो उसने देखा कि आगे जाकर उसने क्या देखा, एक सपेरा, ठीक है, वो बीन बजा रहा है और वो सांप उसके अंदर कॉइल्ड यानी इस तरह से उस बास्केट में बैठा हुआ है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल water fall. So he saw
that rippling means sound of flowing water, okay, and stole means fell stealthily यानी चोरी छुपे, okay. Graceful means beautiful. So when he saw that द चाइल्ड वो जो स्नेक जब बीन बजा रहा था और वो स्नेक जिस तरह से एक्शन कर रहा था, ठीक है, तो ऐसे लग रहा था जैसे एज इफ इट इज़ बीइंग अ वाटरफॉल. So the child again goes to the snake charmer, but again he knew that his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. यानी उसकी कोर्स का मतलब होता है बेकार, रफ, ठीक है. तो उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर रखा है कि ऐसे म्यूज़िक को वो ना सुने. तो उसको पता है कि उसके पेरेंट्स ये भी देखने या सुनने नहीं देंगे, तो फिर से आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग. राउंड अबाउट यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक तरह का झूला होता है, ठीक है, गोल, जिसको आप शायद डॉलर या कुछ कहते हो, इज़न्ट, इस तरह का, और उसके अंदर बहुत सारे झूले होते हैं और गोल गोल घूमता है, ठीक है. तो देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, और ये ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था, ठीक है. और उसने जब वो ये सीन जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, एग्जैक्टली इवन वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड इट. हम भी कितनी बार देखने के लिए रुक जाते हैं जब वो झूला ज़ोर ज़ोर से चलता है और अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हर एक कंपार्टमेंट में, ठीक है, एंड वर्लिंग मोशन राउंड में चलता है. श्रीक्ड एंड क्राइड, लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते भी है, हंसते भी है, और वो चाइल्ड उन लोगों को इंटेंटली यानी एक टक देख रहा था. देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. फिर वो बोल्ड रिक्वेस्ट यानी इस बार वो ज़िद करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. तो वो इस बार बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे इसमें तो बैठना ही है. सो ही सेज फादर एंड मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई, ठीक है. तो जैसे ही वो ये चीज़ बोलता है तो उसको कोई रिप्लाई की आवाज़ नहीं आती है. तो वो जब मुड़ के देखता है, ही टर्न टू लुक, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. उसने जैसे ही वो मुड़ के देखा उसने, तो पीछे उसके पेरेंट्स नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वो इधर इधर देखता है तो भी उसके पेरेंट्स उसको नज़र नहीं आते हैं. दे वर नॉट देयर. ही लुकड बिहाइंड, पीछे जाता है, पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी आगे पीछे हर तरफ वो घूम जाता है, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स कहीं पे भी नज़र नहीं आते. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसका गला डर के मारे सूख जाता है और वो रोने लग जाता है. एंड विद सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर. और एक झटके से, मतलब एक बॉडी को झटका देकर वो वहाँ से जहाँ पर वो खड़ा था रोने लगता है, वहाँ से भागता है, इधर उधर भागता है, और ही इज़ इन रियल फेयर, इतना डर जाता है और वो रोने लगता है अपने फादर मदर के लिए. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं. हॉट एंड फियर्स, पूरा शरीर में जैसे गर्मी सी हम डर के मारे हो जाता है. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर. उसके चेहरे पे एक बहुत डर सा आ जाता है. पैनिक स्ट्रिकन यानी एक शॉक सा हो जाता है उसको. आप खुद इमेजिन करो कि अगर ऐसे मेले में आप या किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हो तो उस समय क्या सीन होगा. दिस कुड बी felt here. He ran to one side first, then to the other, either and the other in all direction. हर तरफ वो भागता है, कोशिश करता है, and he starts screaming, mother, father. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. It means उसने सिर पे जो येलो टर्बन पहन रखी थी, पगड़ी छोटी सी, वो उसके सिर से अनटाइड यानी खुल जाती है, ठीक है. उसके कपड़े पूरे मडी यानी मटमैले हो जाते हैं. Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. Now here it is been said
कि उसको वो सारा एक फ़िल्म की तरह दिख रहा था, यानी उसकी आंखों के आगे एक फ़िल्म चल रही है, सारे लोग अपने अपने इंजॉयमेंट में डूबे हुए हैं और उसकी जो कंडीशन है वो सिर्फ वो ही समझ सकता है। ठीक है। सो ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली। अब हम अपने पेरेंट्स को लोगों में ढूंढने लगते हैं, उन्होंने जो कलर के कपड़े पहने होते हैं वो ढूंढने लगते हैं, isn't? So he was trying to do the same thing, but no sign of his father and mother in among these people. लेकिन उन लोगों में उसके फादर और मदर नहीं मिले। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Shrine means temple. तो वो मंदिर की तरफ भागता है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. It means हर छोटी छोटी जगह इस भीड़ में से वो जगह जैसे जैसे मिल रही थी वो निकलता जा रहा था और रोता जा रहा था for his mother and father. Near the entrance to the temple, the crowd became very thick. It means जैसे ही वो एंट्रेंस पे पहुंचा मंदिर के, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। मैन जॉसल ईच अदर, जॉसल मीन्स एक दूसरे को धक्का देना, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, यानी वो तो बड़े बड़े लोग और वो छोटा सा बच्चा था और इन बड़े बड़े लोगों की भीड़ में वो फंस जाता है। ही स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मोमेंट्स। इट मीन्स उसने बहुत कोशिश की उस भीड़ में से वो निकले, बट यू नो पीपल हाउ दे बिहेव, बस अपना रास्ता निकालना होता है, वो धक्का करते हैं। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अब वो जोर जोर से रो रहा था, मदर फादर। तो एक आदमी ने उसकी जब आवाज़ सुनी और उसको देखा, एंड ही आस्क्ड हिम व्हाई आर यू, ही लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स, उसको अपने हाथों में उठाता है, बाहों में उठाता है उस बच्चे को और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसके बच्चे हो। ठीक है। तो वो बच्चा रोता जाता है और वो कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नाउ हियर दिस मैन इज़ ट्राइंग टू कन्विंस दैट बॉय। अब वो बच्चा इतना रो रहा है तो उसको सूद करने के लिए, यानी उस बच्चे को चुप करने के लिए वो उस राउंड अबाउट यानी उस झूले के पास ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, तो वो मना कर देता है। ठीक है। उसके बाद फिर वो ये कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। हियर यू कुड सी द सीन, हियर दिस बॉय इज क्राइंग एंड दिस मैन इज कन्विंसिंग हिम। देन दैट मैन टुक हिम फर्दर, वो आदमी उसको आगे लेके जाता है और उसको वही स्नेक चार्मर जो फ्लूट बजा रहा है उसको नचाने के लिए, तो क्या तुम इसका म्यूज़िक सुनना चाहोगे, तो वो फिर रोता है। ठीक है। अगेन ही स्टार्ट सेइंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वो उसको बलून्स वाले के पास लेके जाता है और उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कि तुमको बलून चाहिए क्या, तो वो हर चीज़ के लिए मना करता है, बस एक ही बात, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। फिर उस फूलों के पास लेके जाता है जहाँ पर उसको फूलों की माला चाहिए थी। ही आस्क्ड हिम, वुड यू लाइक टू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, तो वो फिर से मना कर देता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. फिर आखिर में लास्ट में उसको उसी स्वीट शॉप पर ले जाते हैं जहाँ पर उसको वो बर्फ़ी खानी थी। ठीक है। वो उसको पूछता है, वुड यू लाइक द स्वीट्स, तो ही सेज नो। अगेन ही स्टार्ट्स क्राइंग, ही ओनली सॉब्ड यानी रोते रोते बोलना, डेट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स दैट हम अपने पेरेंट्स से किसी भी चीज़ की जिद करते हैं और जब वो हमें मना कर देते हैं तो हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर हम इन्हीं पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उस समय हम ये इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। व्हाट वी नीड एट दैट टाइम इज़ जस्ट आवर पेरेंट्स। ओके।